صدور صاحبان، محترم سامعین، میرے مقالے کا موضوع ہے ممتاز مفتی کا سوانحی ناول الکھ نگری ایک جائزہ۔ سوانح عمری ایک انسان کی پیدائش سے موت تک کے افعال کا بیان ہے، یا یوں کہیں کہ ایک انسان کی حیات یا تاریخ ہے۔ سوانحی ناول سوانح اور ناول کا حسین امتزاج ہے۔ کسی سوانح کو جب افسانوی رنگ دے کر ناول کی تکنیک پر برتتے ہوئے اسے پیش کیا جائے تو وہ سوانحی ناول کہلاتا ہے۔ سوانحی ناول میں پورا ناول ایک کردار کے گرد بنا جاتا ہے، اس کے مرکزی کردار کے ساتھ ضمنی کردار بھی اس ناول میں موجود ہوتے ہیں۔ اس ناول میں واقعات اور افراد حقیقی ہوتے ہیں، مگر انہیں افسانوی رنگ میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ سوانح میں ناول کے بنیادی عناصر موجود ہوں جو سوانحی تصنیف کو سوانحی ناول کا درجہ دلا سکیں۔ سوانحی ناول تاریخ، افسانہ اور حقیقت کو یکجا کرنے کا نام ہے۔ ناول میں سوانحی اجزاء شامل کیے جائیں یا سوانح میں ناول کے بنیادی اجزاء، نتیجہ سوانحی ناول کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ سوانحی ناول میں ضرورت یا مصلحت کے تحت افراد اور مقام کے ناموں میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ اردو ادب میں سوانح نگاری اور ناول نگاری کے اصناف سوانحی ناول سے پہلے موجود تھیں۔ پھر سوانحی ناول کے نئے تخلیقی تجربے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں اصناف سوانح اور ناول کی خوبصورتی کو یکجا کر کے دلچسپی کے عنصر کو تقویت دینا۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ناول نگار اپنے ذاتی تجربات و حالات اور واقعات کو افسانوی رنگ میں پیش کرتا ہے تو یہ اثرات دوررس ہوتے ہیں۔ مغرب میں بھی سوانحی ادب کو اہم مقام حاصل ہے۔ کسی ناول کو مکمل سوانحی ناول قرار دینا اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک اس میں سوانح اور ناول کے بنیادی عناصر نہ پائے جائیں۔ اردو ادب میں سوانحی ناول کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کا نام اہم ہے۔ ان کے متعلق نیلم فرزانہ لکھتی ہیں کوٹ ناول میں سوانحی اجزاء کی پیشکش اردو میں نئی بات نہیں، بلکہ خود قرۃ العین حیدر کے اہم ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا میں سوانحی عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کتابیں سوانح نہیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں کار جہاں دراز ہے سوانحی کتاب ہے۔ انکوٹ نیلم فرزانہ کے مذکورہ والا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ناول جس میں سوانحی اجزاء پائے جاتے ہیں مکمل طور پر سوانحی ناول نہیں ہو سکتے۔ سوانحی ناول کسی ایک فرد یا کردار کے افعال، واقعات اور تجربات کو بیان کرتا ہے۔ ایسا کوئی ناول جس میں جزوی طور پر آپ بیتی یا سوانح کا انداز ملتا ہو اسے سوانحی ناول نہیں کہہ سکتے۔ خالصتاً سوانحی ناولوں کی تعداد بہت کم ہے اور خود نوشت سوانحی ناول تو چند ایک ہی ہیں۔ خود نوشت سوانحی ناول نگاروں میں اہم نام قرۃ العین حیدر، کار جہاں دراز ہے، ممتاز مفتی علی پور کا ایلی اور الکھ نگری اور احمد بشیر دل بھٹکے گا کے ہیں۔ سوانحی ناول نگار کا جب بھی ذکر ہوگا یا اس کی تاریخ لکھی جائے گی ممتاز مفتی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ علی پور کا ایلی اور الکھ نگری ممتاز مفتی کی خود نوشت سوانحی ناول ہیں۔ علی پور کا ایلی کے پہلے ایڈیشن کے پیش لفظ میں ممتاز مفتی اسے ایک روداد کہتے ہیں۔ دوسرے ایڈیشن میں وہ اس ناول کو ایلی کی داستان حیات اور آپ بیتی قرار دیتے ہیں، جبکہ تیسرے ایڈیشن میں وہ واضح الفاظ میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب میری آپ بیتی کا پہلا حصہ ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنی آپ بیتی کو ناول کے روپ میں پیش کر کے اسے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے۔ حقیقی واقعات کو افسانوی رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت اور افسانے کے اس حسین امتزاج نے اس کتاب کو خود نوشت سوانحی ناولوں میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ایلی کا کردار وضع کرنے میں ممتاز مفتی نے تخلیقی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ الکھ نگری میں کہانی پن کم اور شخصی خاکے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی کے اختتام میں تقسیم ہند کے المیے کو پیش کیا ہے، جس سے تقسیم ہند کے حالات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ دراصل الکھ نگری ممتاز مفتی کی آپ بیتی علی پور کا ایلی کا توسیع ہے جو 1947 سے لے کر ان کے بستر علالت تک کے حالات و قوائف پر مشتمل ہے۔ الکھ نگری میں تمام کردار اپنے حقیقی نام اور پس منظر کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جب ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی 1941 کا دوسرا حصہ الکھ نگری 1992 میں لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھی اور دوست ناراض ہو گئے کہ تم اپنی خامیوں اور کمیوں کا اشتہار کرو لیکن ہماری خامیوں اور کمیوں کی تشہیر نہ کرو۔ چنانچہ ممتاز مفتی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ الکھ نگری نہیں لکھیں گے۔ جب قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ شائع ہوا اور انہوں نے اس کا آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات پڑھا تو ممتاز مفتی ششدر رہ گئے کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کی چوتھی سمت کا راز افشا کر دیا۔ لوگ بھی ممتاز مفتی کو سلسلہ شہابیہ 4 درویشوں کا تانا دیا کرتے تھے، چنانچہ آخری باب کے درویش کو بتانے کی خاطر جو قدرت اللہ شہاب کی پوری زندگی پر حاوی رہی، ممتاز مفتی نے
अलख-नगरी लिखना शुरू किया। मुमताज़ मुफ्ती ने अलख-नगरी के तमाम किरदार को पहले से ही अपने असल नाम के साथ पेश किया, जिनसे अली का वास्ता बराह रास्त पड़ा था। ये तमाम किरदार या तो मशहूर मारूफ अदीब हैं या शोहरत याफ्ता फनकार थे। अलीपुर का अली के किरदार अली को अलख-नगरी में मुमताज़ मुफ्ती ने बहुत वाज़ेह शक्ल में पेश किया है। गो कि उन्होंने अली की शख्सियत के बुनियादी कवायफ व हालात तो तब्दील नहीं किए, मगर इंसानी शख्सियत के तदरीजी इर्तिका की इतनी बेहतरीन मिसाल शायद ही कहीं और दस्तयाब हो। अलख-नगरी के पहले 23 बाब दरअसल अली की ज़िंदगी का तसलसल है। उसके बाद मुमताज़ मुफ्ती की ज़िंदगी में जो तब्दीली हुई उनका जिक्र है, और बकिया ज़िंदगी जो कुदरतुल्लाह शहाब के इर्द गिर्द घूमती थी उसको बयान किया गया है। गोया अलख-नगरी एक दायरा कार है जिसका मरकजी नुक्ता कुदरतुल्लाह शहाब है। अलख-नगरी में वाक़यात को तसलसल के साथ बयान नहीं किया गया है, बल्कि मौज़ूआत के मुताबिक ये किताब तहरीर की गई है। मौज़ूआत के मुताबिक लिखने में ज़मान व मकान की भी तब्दीलियाँ की हैं। आप बीतियों का मुमताज़ मुफ्ती ने जो तज़किरा किया है वो उनकी तहरीरों में भी देखने को मिल जाती है। अलख-नगरी में उन्होंने तक़सीम हिंद के असरात पर जी खोल कर तबसरा किया है, उसके नुकसानात पर भी रोशनी डाली है। वह तहज़ीब जो बरसों की मेहनत व काविश से वजूद में आई थी, उस तहज़ीब को तक़सीम ने तहस नहस कर दिया था और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दिगर उदबा व शुअरा की तरह वो भी तक़सीम हिंद को गलत समझते हैं और उसका जिम्मेदार अंग्रेज़ को ठहराते हैं। मुमताज़ मुफ्ती ने अलख-नगरी में सवानही तकनीक का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किरदारों के ज़रिए अपने ख़ानदान और हिंदुस्तान के अलमिए को तारीख़ी और तहज़ीबी तनाज़ुर में पेश किया है, जिसमें सियासी मुहर्रिकात और हुकूमत हिंद और हुकूमत वक्त के कारनामों का भी जिक्र है। इस तरह अलीपुर का अली और अलख-नगरी फ़नी व फ़िक्री और मालूमाती एतबार से अहमियत का हामिल तो है ही, उसकी तारीख़ी अहमियत भी मुसल्लम है। 1947 की आज़ादी के बाद हिजरत की आंधी में लोगों को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, उस वक्त के अक्सर तख्लीक़कारों ने उसकी अपने अपने अंदाज से मंजरकशी की है, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती ने जिस अंदाज से इस अलमिया को पेश किया है उसको पढ़कर इंसान कराह उठता है। मुमताज़ मुफ्ती ने इस नावल में हिजरत की मंजरकशी इस तरह की है कि मेरे ख्याल में हिजरत की इससे करीह मंजरकशी शायद ही मुमकिन हो सके। मुहाजिर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, लोग इधर से उधर ताबनाक मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हुए मुंतकिल हो रहे हैं और फसादी मासूम लोगों से नबरत आजमा है। बदकिस्मती तो ये है कि मजहब की आड़ में बेगुनाह और निहत्थे लोग कत्ल किए जा रहे हैं। कोट बादल नाखास्ता मैं डब्बे की तरफ बढ़ा, दरवाजे में रुक गया। वहाँ खून का छीड़ लगा हुआ था। सामने एक बूढ़ी औरत गठरी की तरह पड़ी हुई थी, आंखें पथराई हुई थी, दोनों हाथ पेट पर थे, सामने पेट से निकली हुई आंतों का ढेर लगा हुआ था। देर तक मैं बुढ़िया को घूरता रहा, खून की बू से तबीयत मालिश कर रही थी, सर चकरा रहा था, नज़र धुंधली पड़ती जा रही थी। गाड़ी के अंदर दाखिल होने की हिम्मत ना पड़ी। दरवाजे में खड़े खड़े डब्बे का जायजा लिया। सारे डब्बे में कटे हुए गोश्त की ढेरियां लगी हुई थी। दो बाजू ऊपर तख्ते से लटक रहे थे, दो कटे हुए सर फर्श पर लुढ़क रहे थे, एक बच्चा हुक से लटक रहा था। अनकोट मुमताज़ मुफ्ती ने अलख-नगरी में हकीकत निगारी से काम लेते हुए ये बताया है कि लोग उस वक्त इंसानों के खून से किस तरह होली खेल रहे थे। बेगुनाह और निहत्थे लोगों की खून से होली खेलते हुए लोगों को देखकर मुमताज़ मुफ्ती के दिल में लोगों के खिलाफ नफरत का जज्बा भड़क उठा। आमतौर पर देखा यह गया है कि फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले इंसान अपने मजहब के बताए हुए अहकाम पर ताउम्र अमल पैरा नहीं होते, लेकिन जैसे ही फसाद फूट पड़ता है तो वह अपने आप को पक्का मुसलमान और पक्का हिंदू गर्दानने लगते हैं। मुमताज़ मुफ्ती तक़सीम हिंद के वक्त हमें दो तरह की तस्वीरें मिलती हैं, एक हुस्न सलूक की और दूसरे बदसलूकी की। यानी एक तरफ कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म था तो दूसरी जानिब लोग जान पर खेलकर लोगों की जानें बचा रहे थे, रवादारी और रहमदिली की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे थे। मुमताज़ मुफ्ती ने ऐवनाबाद की शेखानियों की हुस्न सलूक का जिक्र करते हुए ये बताया है कि जब तारिकीन वतन की बाजियाबी शुरू हुई तो बाज़ हिंदू औरतों ने वतन जाने से साफ साफ इनकार ही कर दिया, लेकिन चूँकि जब तक तमाम हिंदू औरतें सरहद के उस पार पहुंच नहीं जाती मुसलमानों की वापसी नामुमकिन है, इसलिए समझा बुझाकर हिंदू औरतों को जाने पर आमादा कर लिया जाता। उस वक्त ऐमनाबाद की ख़वातीन की कैफियत कुछ यूँ थी, कोट जैसे अपनी बेटियों की डोलियां विदा हो रही हों। हिंदनियाँ शेखानियों से चिमट चिमट कर मिल रही थीं, शेखानियाँ बार बार आंसू पोंछ रही थीं। अनकोट फसाद के बाद जो लोग जिंदा बचकर घरों में पहुंच गए थे या तो अपने मालिक के रहमो करम पर जिंदा थे या वो रिफ्यूजी कैंप में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत वहाँ ऐसी थी कि जैसे जिंदा लाश हो। कोट बूढ़े सर थामे हुए बैठे थे, बूढ़ियाँ
मुंह खोले आसमान की तरफ टकटकी बांधे पड़ी थीं, बच्चे सहमे हुए थे, नौजवान के चेहरे पर उकताहट थी, लड़कियां यूं बैठी थीं जैसे वो लड़कियां ना हों बल्कि नौउम्री में ही बूढ़ी हो गई हों। मटियार औरतें सिर्फ जिस्म ही जिस्म थीं, उन्हें ये शऊर ही नहीं था कि वो औरतें हैं। उनकी आंखों में निसाई चमक का नामो निशान न था। औरत में अगर निसाई शऊर ना रहे, अगर उसे एहसास ना रहे कि वह औरत है, तो वो जिस्म का एक तोदा बनकर रह जाती है, बेहिस भद्दे जिस्म का तोदा। उसमें चमक नहीं रहती, जाज़बियत नहीं रहती, तवज्जो तलब नहीं रहती, तस्खीर की ख्वाहिश नहीं रहती। मैंने उन्हें देखकर शिद्दत से महसूस किया कि अगर वो फसादात में मर जाते तो बेहतर होता। यूं जिंदगी के सोते खुश्क हो जाने के बाद जिंदा लाशों की तरह जिए जाना मैंने शदीद झुरझुरी महसूस की। अनकोट। यकीनन तक़सीम हिंद तारीख़ का बदतरीन लम्हा था। उस तक़सीम ने जहन और दिलों को भी तक़सीम कर दिया था। मुमताज़ मुफ्ती उस तक़सीम को नापसंद करते थे। इस नावल में मुमताज़ मुफ्ती का सबसे बड़ा मुशाहिदा कुदरतुल्लाह शहाब ही हैं, इसलिए उन्हीं की हालात ज़िंदगी पर इस नावल के ताने बाने बुने गए हैं। चूँकि मुमताज़ मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब की शख्सियत से बेहद मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े तजर्बे के तौर पर पेश किया है। कुदरतुल्लाह शहाब बेशुमार मोहताजों और हाजतमंदों की ज़रूरतों को इस तरह पूरा करते कि दूसरों को खबर तक न होती। इसके अलावा उनमें जो भी खूबियाँ थी उसे मुमताज़ ने हर तरह से एक आइडियल की सूरत में पेश किया है, जिसे देखकर इंसान इस कायनात में ज़िंदगी बसर कर सके। और उन बातों के सबूत के लिए किताब के आखिर में खुतूत के अक्स भी शामिल कर दिए हैं। अलबत्ता उसलूब में कहीं कहीं मुबालगा आराई से ज़रूर काम लिया गया है। दरअसल मुमताज़ मुफ्ती ने अलख नगरी खुलूस व अक़ीदत की रोशनाई में कलम डुबो कर लिखा है, इसलिए कहीं कहीं अक़ीदत की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, लेकिन खुलूस का रंग इब्तिदा से इंतहा तक एक जैसा नज़र आता है। कुदरतुल्लाह शहाब के अलावा अलख नगरी में जो किरदार पाए जाते हैं उनमें अक्सी मुफ्ती का जिक्र बार बार आया है। मुमताज़ मुफ्ती ने अक्सी मुफ्ती की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात व हादसात निहायत सलीस सहल व सादा ज़बान में अदीबों पेश किया है, जिनसे अक्सी मुफ्ती को गुजरना पड़ा था। कुदरतुल्लाह शहाब और अक्सी मुफ्ती के अलावा अलख नगरी में 20 अदीबों और फ़नकार के किरदार आए हैं, जिनमें कुछ ऐसे किरदार हैं जो अलीपुर कायली में आ चुके थे और ज़रूरतन उनको दोहराया गया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो मुमताज़ मुफ्ती की शख्सियत निगारी का मौजू बन चुके थे, क्योंकि एक अदीब के गिरदोपेश में अदीबों और फ़नकारों के अलावा कौन आ सकता है। अदीबों और फ़नकारों में अहमद बशीर, अजीज़ मलिक, परवीन, आतिफ, अदा जाफरी, अशफाक अहमद, सज्जाद हैदर, बानू कुदसिया, इब्ने इंशा वगैरह का जिक्र बार बार आया है। मुमताज़ मुफ्ती का कमाल ये है कि वो मज़कूरा किरदारों के हवाले से अपने अहद के अदबी रुझान और अदबी माहौल की भी उम्दा मुरक्काकशी की है। इस तरह ये नावल अपने किरदारों की ज़िंदगी के साथ साथ अपने ज़माने की सियासी, समाजी और अदबी तस्वीर का मरक़ा भी है, जिससे इस नावल की अहमियत दो चंद हो जाती है। इस नावल में वाक़यात के तकरार के साथ साथ जा बजा खाके का अंदाज भी नज़र आता है। अलख नगरी में जो हैरत अंगेज़ वाक़यात और अनोखे किरदार नज़र आते हैं, वो कारी को सिर्फ हैरान व शश्तर ही नहीं करते, बल्कि वो कारी पर गिरा भी गुजरते हैं, इसलिए कि उनके हैरत अंगेज़ वाक़यात को अक्ल तस्लीम नहीं करती। इन बातों के बावजूद अलख नगरी अपने उसलूब बयान के एतबार से भी लाजवाब शाहकार की हैसियत रखता है। बिलाशुबा मुमताज़ मुफ्ती ने अलीपुर कायली और अलख नगरी में बचपन से लेकर उम्र के आखिरी लम्हात तक के वाक़यात को जहन और याददाश्त की मदद से मुंतकिल करके एक ऐसे हकीकत निगार का काम अंजाम दिया है, जिसने अपनी ज़िंदगी की तमाम खूबियाँ व खामियाँ मिनवान पेश कर दी हों। उन्होंने अपने नौजवानी के ज़माने की नाकामियों और कामयाबियों के साथ साथ जवानी की हरकतों को बयान करने में किसी तरह की पशेमानी का एहसास नहीं किया, बल्कि ज़िंदगी के तमाम तजर्बात, मुशाहिदात और नज़रियात को सच्चाई के साथ बेकमो कास्त कलम बंद कर दिया कि जिसको पढ़कर मुमताज़ मुफ्ती के नेहा खानों से वाक़िफ़ियत के साथ साथ ज़िंदगी के नशीब व फराज से गुजरने का सलीका भी मालूम होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि अलख नगरी एक बुलंद पाया तख्लीक है। खुद नविश्त सवानिही नावल में अलख नगरी को अपने अंदाज़ तखातुब और बयानिए की वजह से अहम मकाम हासिल है। खुद नविश्त सवानिही नावल के हवाले से जब भी गुफ्तगू होगी, मुमताज़ मुफ्ती का ये नावल नाक़िदीन फ़न की तवज्जो का मरकज़ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।